नहीं, don't worry. Okay. Okay, so welcome, dear Karishma, to Insignia Learning. This is eighth class, I think. So today we are going to understand more about type of sciences and the scientist. So we have a little glimpse about different type of the science and those people who are studying these sciences. So we studied like geographer, like astronomers, and so on in the previous classes. So today we are going to Yes. look on to their etymology and root word. So the very first thing is that what is our relation with the stars? So today I was looking into the sky, the beautiful moon. So and the stars as well. I was locating the constellation. What are constellation? I will tell you. So what is our relation with the star? First thing, it is like amazing fact that we all are made up of stardust. Okay, so the iron in our blood is actually made in the core of the star. In the ancient time, when we were hunters and gatherers, so we used to observe the sky, and we used to observe the sky and locate, make an imaginary figures there. We call them constellation, and we figured out like different type of the constellation appears in different type of the seasons. Like some of the constellation, like pattern of the stars, are appears in the summer, or some appears in the winter. So by this we can observe the upcoming of the which kind of the season. So this makes us the first subject came into existence, that is astronomy. And those people who are basically observing these constellations, these stars, the patterns, we call them astronomers. Okay. So now let's look onto the etymology of these astronomers. Okay, wait a minute. Let's remove its animation from this to pop up. तो क्या हुआ कि बहुत पहले हम आसमान को देखते थे, स्टार्स का पैटर्न बनाते थे और उन पैटर्न्स का कुछ नाम देते थे, जैसे कि कैसोपिया, अर्सा माइनर, अर्सा मेजर। और फिर हमें पता चला कि ये स्टार्स तो कुछ खास सीजन में ही आते हैं। तो हमें उससे सीजन का पता चलने लग गया कि कौन सा सीजन आ रहा है, कौन सा सीजन नहीं आ रहा है। और ऐसे लोग जो इन अरेंजमेंट को, इन स्टार्स के पैटर्न को स्टडी करते थे, बहुत पहले हम उनको एस्ट्रोनॉमर कहते थे। अब हम इसकी एटिमोलॉजी या रूट वर्ड्स के बारे में देखेंगे। तो एस्ट्रोनॉमर जो है एक ग्रीक वर्ड है, जो कि एस्ट्रॉन यानी स्टार, और नॉमस यानी उनका अरेंजमेंट पर बेस्ड है। सो लिटरली एस्ट्रोनॉमर का मतलब होना चाहिए, द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमर शुड बी लिटरली those people who are studying the arrangement of the star basically। तो बहुत पहले एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत ही ऐसी हुई थी। एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत अरेंजमेंट को स्टडी करने को लेकर हुआ था, उनका क्या क्या अरेंजमेंट होता है। और उन अरेंजमेंट को हम फिगर्स का नाम देते थे। मतलब ग्रीक में जो लोग ऑब्जर्व करते थे, हमारे यहाँ भी सप्तऋषि हैं और भी हैं जैसे, हम्म। तो ये लोग इनको पैटर्न देते थे महिलाओं का, सिटिंग क्वीन, कैसोपिया, अर्शा में माइनर, मेजर, इस तरह से। लेकिन बाद में ये टर्म थोड़ा सा विकसित हो गया, तो अब हम जो एस्ट्रोनॉमर कहते हैं वो सारे लोगों को कहते हैं जो जो स्टार्स के बारे में, या फिर हमारे आसमान से ऊपर स्पेस के बारे में कुछ भी हमें दिखता है, कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट है, वगैरह वगैरह, इनके बारे में स्टडी करने वाले लोगों को हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ठीक है। हम्म। So the astronomer is interested in the arrangement of the stars and other celestial bodies। तो शुरुआत में ये लोग अरेंजमेंट स्टडी करते थे। मतलब पहला चैप्टर जो था ना एस्ट्रोनॉमी का, वो अरेंजमेंट ही था। बाद में फिर और चीज़ें हो गई। फिर बाद में हमने मिनरल पढ़ना शुरू करा, उनके एटमॉस्फेयर पढ़ना शुरू करा, रोटेशन, रेवोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें। और ये साइंस बेसिकली कहलाती है एस्ट्रोनॉमी। सो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एस्ट्रोनॉमी। ओके, एस्ट्रोनॉमी। इट इज नॉट एस्ट्रोनॉमी, बट इट इज Astronomy. एस्ट्रोनॉमी। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड? Astronomy. Astronomy. यस, Astronomy. एस्ट्रोनॉमी। Astronomy. नॉट नॉमी, Astronomy. नॉमी, नॉमी। Astronomy. यस, एस्ट्रोनॉमी।
The adjective is Astronomy. astronomical. Whenever we put kal, Yes. cal, so it become adjective. And you know what is adjective? Like it describe about Yes. a noun of something. Okay. It is used as a figurative in meaning. What is figurative means? So we often come across this term, that is astronomical size of national debt. सो देश का जो कर्जा हो गया हम कह सकते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल साइज का हो गया। कहने का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा हो गया। ठीक है। जब हम इतना इतना ह्यूज हो गया कहेंगे देश का कर्जा, नेशनल डेट, तो हम कहेंगे कि इट बिकम एस्ट्रोनॉमिकल साइज। ठीक है। वैसे भी एक यूनिट आती है लेंथ को मेजर करने की, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, मेरे हिसाब से वो होता है 10। ओके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट काफी लंबी डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते 10 to the power 10 astronomy. हैं। हाँ, शायद हो सकता है, तुम सही कह रही हो। तो इट एक्सट्रीमली शोज द एक्सट्रीमली लार्ज क्वांटिटीज। और इट इज अप टू यू, आप किस जगह पे यूज करना चाहती हो। ठीक है। आप कह सकती हो कि मेरा सिलेबस बन गया है एस्ट्रोनॉमिकल साइज, क्योंकि बहुत बड़ा बन गया है जो मैं नहीं पढ़ा। अगर आप ऐसा कभी कहना चाहते हो, सो इट इज अप टू यू, आप कैसे यूज करना चाहते हो। हमने पढ़ा कि एस्ट्रॉन बेसिकली स्टार को कहते हैं। ठीक है। Hmm. एक और शब्द होता है दैट इज एस्ट्रोलॉजी। Astrology. हाँ, अब एस्ट्रॉन स्टार होता है, लोगस माने होता है उसकी स्टडी या उसका साइंस। तो क्या आप बता सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होगा? Study about I study about ये stars. यस, स्टडी अबाउट द स्टार्स। ओके। लेकिन जो अब Okay. एस्ट्रोलॉजी का मतलब है, तो ये बेसिकली हमारे स्टार्स का हमारी लाइफ पर, हमारी अर्थ पर क्या इन्फ्लुएंस है उसके बारे में बताता है। हालांकि अब ये एस्ट्रोलॉजी जो है एक, हम कह सकते हैं ज्यादा इसमें सुपरस्टिशंस आ गए हैं, बिलीफ आ गए हैं कि लोग कहते हैं तुम्हारी भाग्य रेखाएं ये हैं, तुम्हारे ऊपर किसी ग्रह की प्रकोप है वगैरह वगैरह। तो अब ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता है। लेकिन शुरुआत में काफी प्योर फॉर्म में था। इसका लिटरली मीनिंग होता था कि स्टडी तो ऑफ ऐसा होता है? स्टार्स। इज देखो, इट पॉसिबल कि कुछ, हाँ, एस्ट्रोलॉजी जब बेसिकली शुरुआत में जब हुआ था, या जो लोग एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी जानते थे, इट इज अ प्योरली मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो वो हम्म बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं क्या स्टार्स की वजह से हमारी जिंदगी में कोई इफेक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर है यस। सन हमारा एक स्टार है। सन की वजह से डे एंड नाइट होती है। सन की वजह से हमें लाइट मिलती है। लाइट की वजह से प्लांट एग्जिस्ट करता है। प्लांट की वजह से हम आते हैं और हम खाना खाते हैं। यानी सारी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ गिवर है, एनर्जी गिवर है, वो सन है। इसी तरह से हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड अ स्टार। उसकी वजह से, टिल्ट की वजह से भी हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के सीजन्स होते हैं। सीजन्स? सीजन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि सम प्लांट्स shedding their leaves, and in some time, after some time, they again grow their leaves। हमारे पास स्प्रिंग आता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो यस, स्टार के इन्फ्लुएंस की वजह से, रोटेशन की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से हमारी अर्थ में बहुत सारा चेंज आता है। ठीक है। तो यस, तो दिस कुड बी। मतलब ये ऐसे मतलब जो वो सही में हाथ पढ़ के ऐसे ऐसे करके वो बताते हैं वो रियल होता है? इसका मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आई डोंट हैव एडिक्वेट नॉलेज टू कमेंट ऑन दैट। तो मैं आपके ऊपर रखता हूँ। ठीक है। मुझे मतलब कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। और इसका जो हम प्रैक्टिशनर कहते हैं उसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। ओके, एस्ट्रोलॉजर। कैन यू एस्ट्रो प्रोनाउंस द वर्ड? एस्ट्रोलॉजर 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 एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर लॉजर। यस, वंडरफुल। अब एक वर्ड आता है जो काफी ज्यादा फैसिनेट करता है ये 20 आदमी को, आप देख सकते हैं। ये है एस्ट्रोनॉट। लेकिन सरप्राइजिंग क्या है, एस्ट्रोनॉट की एटिमोलॉजी, ये किस वर्ड पर बना हुआ। आपको पता है एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉट कौन होता है? तो वो लोग जो स्पेस सूट पहन के स्पेस में जाते हैं, जैसे मून पे जाते हैं। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आप पढ़ते हो, यूरी गार्गिन राकेश शर्मा। गागरिन के बारे में आप पढ़ते हो, कल्पना चावला रिसेंटली, नो नो सॉरी, राकेश शर्मा। राकेश राकेश शर्मा। शर्मा, कल्पना चावला, और अभी अभी सुनीता विलियम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो दीज ऑल पीपल आर बेसिकली और एस्ट्रोनॉट। एक और थे कोई वो मेल थे।
राकेश इसका शर्मा, या तो, शुभांशु शुक्ला। हाँ सुधांशु शुक्ला। शुभांशु है, शुभांशु सुधांशु है, शुक्ला। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, हालांकि हमने कई बार देख रखा है, बट डोंट वरी, जो भी है। हाँ, आईएएफ के ग्रुप कैप्टन, स्क्वाड्रन लीडर या ग्रुप हम्म। कैप्टन में से एक थे वो। लेकिन इसकी स्क्वाड्रन लीडर। एटिमोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ग्रुप कैप्टन से। लिटरली द मीनिंग ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज सेलर अमंग द स्टार, यानी स्टार्स के बीच में तैरने वाले आदमी को हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एस्ट्रो का मतलब होता है, एस्ट्रॉन का मतलब आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है, स्टार। और नॉट्स का मतलब होता है सेलर, ठीक है। सेलर माने तैराक, जिसको हम कह सकते हैं, जहाजी जैसा कुछ कह सकते हैं। और एक और वर्ड है जो कि रशियन ओरिजिन का है, दैट इज कॉस्मोनॉट। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, नॉट माने उसमें सेल सेल करने वाला, उसमें तैरने वाला, इसको हम कॉस्मोनॉट कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉन मीन्स स्टार एंड नॉट मीन्स सेलर, जो इसमें तैरता है। क्योंकि तुम ज्योग्राफी की स्टूडेंट हो तो तुम्हें नॉटिकल माइल्स के बारे में कुछ न कुछ आइडिया होगा। क्या है आपको आइडिया? नॉटिकल माइल्स। हाँ, हमारी जो हम्म। सी की बाउंड्री है ना, वो है 12 नॉटिकल माइल, आई थिंक। एक बार डेटा चेक कर लेना, 12 नॉटिकल माइल। तो ये अराउंड होता है 1.3 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस होती है। इसी के अंदर हमारा ईसीजी आता है, इकोनॉमिकल कुछ कन्वर्जेंस जोन करके होता है ईसीजी। ज्योग्राफी के अंदर आता है, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है। 12 नॉटिकल माइल तक हमारी जो है वो सी बाउंड्री होती है, या ईसीजी उसके अंदर आता है। नॉटिकल का मतलब होता है, सो इट इज रिलेटेड टू द सेलर्स शिप एंड द नेविगेशन, जो पुराने जमाने में जहाजी यूज करते थे। और ये नॉटिकल वर्ड जो होता है वो नौशिया से रिलेटेड होता है। नौशिया का मतलब होता है, नौशिया का मतलब होता है सी सिकनेस। जैसे अगर हम हिमालय पे चले जाएंगे, हमें एक प्रकार की ठंड से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। हम अगर सहारा डेजर्ट पे चले जाएंगे, थार डेजर्ट पे चले जाएंगे, तो हमें वहाँ उस वातावरण के हिसाब से बीमारी हो सकती है, उस टेम्परे एनवायरनमेंट के हिसाब से बीमारी हो सकती है। वैसे ही अगर हम सी पे चले जाए तो हमें वहाँ सी के हिसाब से बीमारी हो सकती है, उसको हम नौशिया कहते हैं। नौशिया माने सी सिकनेस, ठीक है। हम्म। ओके, एक और चीज आता है, एस्टर का मतलब होता है बेसिकली स्टार शेप का फ्लावर। एस्टेरिस्क होता है, एस्टेरिस्क एक ये वाला सिंबल होता है, जहाँ पे हमें बुक के अंदर हमें कुछ दिखाना होता है कि इसका मीनिंग देख लेना, या इसके दो मीनिंग है। तो हम उस राइटिंग के अंदर, उस लाइन के अंदर हम इस एस्टेरिस्क का इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह यूज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्टेरिस्क कहते हैं, ठीक है। हम्म। समझ में आ रहा है बेटा करिश्मा? हाँ हाँ आ रहा है। सर दर्द हो रहा लगता है आज भी। नहीं 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 हो रहा है। तो सब सारे के सारे वर्ड जो है ना वो एस्ट्रॉन पे बेस्ड है, एस्ट्रॉन, ओके। एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार। एस्ट्रॉन पे हाँ। बेस्ड कितने सारे वर्ड हैं। तो कभी तुम्हें एस्टर एस्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए, स्टार किससे स्टार। संबंधित होना चाहिए, ठीक है। मान लो एग्जाम हम्म। में आता है कि व्हाट इज लाइक एस्ट्रो, यहाँ पे हमने देखा था व्हाट इज नॉटिकल माइल। कहीं पे कोई वर्ड आता है नॉटिकल से, माइल से रिलेटेड या नॉट से रिलेटेड, तो इसका मतलब होता है सी। सेलर, यानी तैराक सी। से संबंधित। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ ये तैराक से संबंधित है। ऑप्शन चेक करके तुम हटा सकती हो कि इसमें तो तैराक से संबंधित है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डी कुड बी द आंसर। दूसरा आता है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स इसका मतलब होता है फिजिक्स की एक ब्रांच जो स्टार्स के बारे में स्टडी करती है, उनके रोटेशन, रेवोल्यूशन, उनका जो पाथ होता है, वगैरह वगैरह के बारे में। और ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड, दैट इज डिजास्टर। ओके, हम्म। डिजास्टर। सो डिस का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और एस्टर का मतलब होता है स्टार। तो इसका स्टार। लिटरली मीनिंग होना चाहिए अगेंस्ट द स्टार। लेकिन डिजास्टर का मतलब, तो डिजास्टर का मतलब तो क्या होता है, कुछ नेचुरल क्लामिटी हो, कैटास्ट्रॉफ हो, फ्लड हो, वॉल्केनो हो, या फिर हमारे पास अर्थक्वेक हो, है ना। इसी को हम हम्म। डिजास्टर कहते हैं।
तो पहले के हम्म। टाइम में क्या मानते थे, और ये बात काफी एक्सटेंट तक सही भी है, कि हमारी अर्थ पे जो भी चेंजेस आते हैं उसमें चाहे कुछ नेचुरल डिजास्टर भी हैं, तो वो स्टार्स के रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, वो क्या नाम था उसका, टाइड होती हैं, टाइड। टाइड की, टाइड क्या होती है? टाइडल वेव्स सुना होगा ना आपने, क्या बोलते हैं टाइड को हिंदी में? पता नहीं क्या बोलते हैं, टाइड होता है, तो वो नहीं, बेसिकली मून की होता ग्रेविटी, क्या है ये बताइए ना, कब तक मैं समझ जाऊँ। समुद्र की लहरें उठती हैं मून की ग्रेविटी की वजह से। ये अर्थ है, ये मून है, तो मून की ग्रेविटी हम्म। इसको थोड़ा खींचती है। समुद्र का पानी उड़ जाता है ऐसे ही। अब मून यहाँ चले जाता है, तो समुद्र का पानी इस साइड को आ जाता है। इस तरह से कुछ होता है। ओह। इसको हम कहते हैं टाइड, ठीक है। ये भी एक नेचुरल क्लाइमेट डिजास्टर के अंदर आता है। फ्लड आ सकते हैं इससे, इसकी वजह से, ठीक है। सी में वेव्स आ सकती हैं। अब ये क्यों हो रहा है? ये मून्स या प्लैनेट की रोटेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम्म। जो स्टार हैं वो ठीक अरेंजमेंट में नहीं है, यानी वो अरेंजमेंट के अगेंस्ट हैं, यानी डिस हैं। डिस का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट होता है, ठीक है। अरेंजमेंट के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से टाइड आ रही है, इसीलिए हम इसको डिजास्टर कहते हैं, ठीक है। ओके। और वैसे भी डिस वर्ड आपको कई जगह मिलेगा, जैसे डिसलाइक। आपको लाइक के अगेंस्ट क्या फीलिंग हो सकती है? डिसलाइक करते हो आप किसी को। अरेंजमेंट के अगेंस्ट क्या होगा? डिसअरेंजमेंट। इसी तरह से, ठीक है, डिस डिस का मतलब अग्री। अगेंस्ट होता है, ठीक है। बहुत जगह मिलेगा ये ओके। वर्ड, आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमें जैसे एस्ट्रोनॉमी की बात करी, एस्ट्रोनॉमी की बात करी, तो नॉमस वर्ड होता है, इसका मतलब होता है लॉ या इन अ ऑर्डर, ठीक है, अरेंजमेंट के हम्म। अंदर। इसके लिए हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसको हम कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब होता है थिंग्स आर इन अ अरेंज्ड वे। ओके, एप्पल पाई ओके। ऑर्डर, कैन यू रिपीट? एप्पल पाई का ऑर्डर। यस, एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है बेसिकली इन अ परफेक्ट ऑर्डर। तो एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो नॉमस वर्ड होता है, इसका मतलब होता है ऑर्डर। यही तो मैंने आपको बताया कि जो एस्ट्रोनॉमर थे वो शुरुआत में क्या पढ़ते थे? वो शुरुआत में पढ़ते थे स्टार्स का अरेंजमेंट, कि स्टार किस तरह से अरेंज है, और उन अरेंजमेंट को हम्म। उन्होंने कुछ इमेजिनरी फिगर्स दिए, और पहचाना कि कुछ प्रकार के अरेंजमेंट हमें समर सीजन के अंदर दिखाई देते हैं, कुछ प्रकार के हमें जो है विंटर सीजन के अंदर दिखाई देते हैं। तो शुरुआत में एस्ट्रोनॉमी स्टार्स के अरेंजमेंट से ही रिलेटेड संबंधित था, फिर बाद में ही बड़ा हो गया, ठीक है। समझ में आ ओके। रहा है बेटा करिश्मा? यस। जैसे हमारे पास होता है, अब एक और वर्ड होते हैं, आपको पता है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था ऑटो का मतलब क्या होता है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, है ना। ऑटो हाँ। पायलट मोड, autobiography we have studied in the previous class, right? So auto means यस। self, and you know हम्म। nomos means arrangement, rule, order. So what could be the meaning of autonomy? Atomic. Self rule. Self, auto means Rule. self, and nomi means rule, order. Rule. So what could be the meaning of the autonomy? Self rule. Just self rule, that is absolutely correct. So autonomy means self rule. Okay, तो आपने बिना वर्ड के मीनिंग जाने ही आपने वर्ड की मीनिंग पता कर दी, कैसे? उसकी एटिमोलॉजी को देखते हुए, ठीक है। अब चलो, हम्म। एटोनमी आप बता सकते हो, तो इससे रिलेटेड वर्ड होता है एटोनमस। मेरे हिसाब से ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है। ओ यू एस भी एडजेक्टिव होता है। ओके, या तो एटोनमस एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, एक बार देख लेना। एडजेक्टिव हो गई। हम्म। अब बताओ मेट्रोनॉम का मतलब क्या होगा? मेट्रॉन आपको मेट्रोनॉम। बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर, क्या होता है? मेजरमेंट, राइट। लाइक हाँ। थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्पाइगमोमैनोमीटर। मीटर मीन्स मेजरमेंट, and nomos means order. So what could be the meaning of metrometer? Micrometer, maybe order of measurement of the orders. Yes, measurement of the order, measurement of the time. So हमारे पास मुझे काफी चोकिंग हो रही है गले में बोलने में।
सॉरी फॉर दैट। हम्म। तो ये पेंडुलम टाइप क्लॉक होती है ना, तो इसको हम कहते हैं मेट्रोनॉम। ओके। तो ये म्यूजिशियन वगैरह ओके। काफी बजाते हैं, जो सितार वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने साथ तानपुरा रखते हैं। तानपुरा बेसिकली उन्हें एक टाइम की साइकिल देता है, हम जिसको ताल कहते हैं, या फिर हम जिसको सरगम कह सकते हैं, सारे गामा पाधा नी वापस से सा, सारे गामा पाधा नी वापस से सा, इसी तरह से। तो इसको हम मेट्रोनॉम हम्म। कहते हैं, ठीक है। ओके, वेल डन, हम्म। हमने काफी कुछ सीख लिया है इसके बारे में। अब हम आते हैं अपनी प्यारी प्यारी सी अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए। हमने पिछली क्लास में स्टडी करा था कि जो लोग अर्थ को स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं डियर करिश्मा? दैट वाज जियो जियोलॉजिस्ट। यस, जियोलॉजिस्ट। 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 अब हमारे पास एक जियोलॉजिस्ट। और वर्ड आ सकता है, जियोग्राफर। जियोग्राफर, जियोलॉजिस्ट एंड जियोग्राफर, राइट। तो इन दोनों के बीच में यस। डिफरेंस क्या होता है? पहले स्टार्ट करते हैं हम जियोलॉजिस्ट से। जियोलॉजिस्ट कौन होता है? जियो मीन्स अर्थ, and you know what is logos means? It means study, science of that thing. And you know ist means that particular person is expert in this, right? Geologist literally means the person who is expert in the study or the science of earth। लेकिन जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो लोग हमारी अर्थ के नीचे देखते हैं, व्हाट इज डीप इनसाइड द अर्थ। हमने इस तरह से टॉपिक पढ़ा था कल। इसके अंदर हमें पता चलता है मतलब कि अर्थ के लेयर्स के बारे में पता चलता है, और मैग्मा। हाँ, लावा। मैग्मा के बारे में पता चलता है। चलो एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ। हम अर्थ के अंदर गए नहीं, हमें कैसे पता चला कि मैग्मा होता है? मैग्मा होता है तो सर हमारे साइंटिस्टों ने पता चला लगाया होगा, जब वो वहां तक पता लगा सकते हैं तो उसके अंदर भी लगाया होगा। इनऑडिबल, नॉट ऑडिबल टू। तुम्हें आंसर बताना बताना चाहती हो? हाँ, बताना चाहती हूँ। हाँ तो थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो बेटा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? बोलती हूँ ना। हाँ। देखिए, वो कैसे पता लगाया होगा, आप ये पूछ रहे हैं ना? हाँ, कैसे पता लगाया होगा? थिंक अबाउट, कुछ अ, बस्ट होता है घर। हाँ, अरे वो होता है ना ज्वालामुखी जब होता है हाँ, तो ज्वालामुखी फटता है तो तो। उससे पता लगाया होगा ना। सिंपल। हाँ। सॉरी। ज्वालामुखी फटता है तो उससे हमें पता लगाया होगा कि हमारी अर्थ के अंदर क्या होता है। एक और चीज होती है, हमने हमारे अर्थ में जो मीटियोर्स वगैरह आते हैं ना, मीटेरॉइड वगैरह आते हैं, तो उनसे भी पता लगाया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, एक नेबुला था, सब हम्म। इसी से मिलकर बना हुआ होता है। बिग बैंग में भी कहते हैं कि देयर वाज अ सिंगुलैरिटी इनिशियली, तो सारी चीजें इससे ही मिलकर बनी हो, तो मोर और लेस सारी प्लैनेट्स का जो कॉम्पोजिशन होना चाहिए वो सिमिलर ही होना चाहिए। तो हमने हम्म। जियोलॉजिस्ट पढ़ दिया जो धरती के अंदर अर्थ के डीप की स्टडी करता है। और जियोग्राफर, अब आप मुझे बताओगे कि जियोग्राफर का मतलब क्या होगा? जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी मैंने हाँ। आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, राइट करना है ना। हिस्ट्री। ओ। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी इसके अंदर हमने देखा था। जैसे हम्म। वो आदमी भी पढ़ा था हमने जो लोगों की हैंड राइटिंग से उनके बारे में पता करता है, हैंड राइटिंग चेक करता है, सिग्नेचर वगैरह, आपको याद है? हाँ। क्या बोलते हैं दैट उसको? वाज दैट वाज फिलोसफिस्ट। फिलोसफिस्ट। फिलोलॉजिस्ट। ओके, हाँ। ठीक है, वंडरफुल। तो आप बताओगे मुझे जियोग्राफर का मतलब क्या होगा? चलो बताओ। जियोग्राफर हु राइट अबाउट अर्थ। हाँ बिल्कुल, लिटरली इसका यही मतलब होना चाहिए, वन हु राइट अबाउट द अर्थ। तो शुरुआत में हमारे पास इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल नहीं थे, लाइक आजकल हमारे पास क्या है, सैटेलाइट है। हम सैटेलाइट्स को अर्थ को मैप कर सकते हैं, हम उसकी 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन शुरुआत में तो हमारे पास कुछ नहीं था। शुरुआत में हमारे हम्म। पास क्या था? हमारे पास थे मैप। मैप ही इकलौता सोर्स था हमारी अर्थ को स्टडी करने के बारे में। तो जियोग्राफर वो आदमी था जो मैप को राइट करता था, है ना, मैप को बनाता था। और क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आप जानते हो कि मैप से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे रिवर्स हैं, वैलीज हैं, ट्रेंचेस हैं, हमारे पास प्लाट्यूज हैं, डेजर्ट हैं, हम्म। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस हैं, वगैरह वगैरह, इसके बारे में पता कर सकते हैं ना। हम्म। तो जियोग्राफर कौन था? लिटरली वन हु राइट अबाउट द अर्थ।
या जो अर्थ का मैप बनाता है, मैप की ही वजह से हम उसको स्टडी करते हैं। जियोग्राफर का मतलब होता है कि जो हमारे अर्थ के सरफेस के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। सरफेस में बहुत हम्म। सारी चीजें आती है, माउंटेन, वैली वगैरह वगैरह। अब जियोमेट्री, आप इसका लिटरल मीनिंग बताओगे। जियो का मतलब अर्थ होता है, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, तो व्हाट कुड बी द लिटरल मीनिंग ऑफ द जियोमेट्री? Geometric is the measurement of the earth. यस, जियोमेट्री बेसिकली मींस मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। लेकिन जियोमेट्री हम्म। का मतलब तो ये तो मैथमेटिक्स होती है, जिसमें हम बहुत सारे शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक स्क्वायर्स, हाँ, रेक्टेंगल्स, geometry. क्यूबॉइडल, क्यूब, कोन्स। लेकिन हम जियोमेट्री कह रहे हैं जो मेजर करता है अर्थ। तो एंशंट ग्रीक टाइम के अंदर शुरुआत में ये जो पूरी जियोमेट्री मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग हुई है, ये अर्थ को ही मेजर करने की वजह से हुई है, ठीक है। अर्थ के बारे में ओके। उन लोगों ने मेजरमेंट किया। देन उसके बाद उन लोगों ने पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनाए, यानी शुरुआत में उन्होंने स्फेरिकल शेप के वगैरह के बारे में स्टडी करी। इसी से शुरू हुआ था जियोमेट्री। अब हमारे पास साइंस होती है। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ द शेप्स लाइक कोन, 3D शेप, 2D शेप की स्टडी करता है, उसको हम जियोमेट्रिशियन कहते हैं, ठीक है। इसका हम्म। एडजेक्टिव होता है, नॉट एडजेक्टिव बट इट इज एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव इज जियोमेट्रिक। ओके। दादा, एक बार फिर से प्रोनाउंस कीजिए। एग्जैक्ट कौन सा जी? Adjective. We don't call it adjective. We call it adjective. 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 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। यस। नाइस। एडजेक्टिव इसका होता है जियोमेट्रिक। ओके, तो जियोग्राफी का मतलब होता है राइटिंग अबाउट द अर्थ, और मैंने इसको आपको बता दिया जो हमारे स्टडी के बारे में अर्थ करता है। लिटरली का मतलब होता है राइटिंग अबाउट अर्थ। और जो मैप को बनाता है बेसिकली उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर, ठीक है। कार्टोग्राफर। हम्म। कार्टोग्राफर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जियो का मतलब अर्थ होता है, और शायद आपने कई किसी आदमी के नाम पे सुना होगा, दैट इज जियोर्ज। ओके, जियोर्ज। हाँ। जियोर्ज का बेसिकली होता है, ये हम कह सकते हैं कास्ट है। और कास्ट है अर्थ वर्कर। और अर्थ यानी सरफेस पे काम करने वाला, और वो कौन हो सकता है? फार्मर, ठीक है। तो दोज हु प्राउडली से लाइक saying George is a kind of a royal thing. So literally and truly it was a farmer caste, हाँ, बहुत पहले। बट ठीक है। दादा, एक्चुअल में सब तो काम अर्थ के ऊपर ही तो कर रहे हैं ना। सब कुछ देखो, दुकानें चल रही है अर्थ के ऊपर ही चल रही है, रोड हो रही है वो अर्थ अर्थ, सब हाँ, कुछ बहुत काम तो बढ़िया। अर्थ के ऊपर ही चल रहा है ना। वंडरफुल। हाँ, तो हम ऐसा हम्म। कह सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि अर्थ के ऊपर चल रहा है। लेकिन जो जियो जियो क्या कहते हैं, जॉर्ज थे, वो बेसिकली इनिशियली फार्मर थे, ठीक है। किसी और को भी जॉर्ज कह सकते हो, आप सही कह रहे हो। अब हम हम्म। हमारे अर्थ के अंदर मिस्टीरियस ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, हमारी अर्थ में लाइफ कैसे आई, और फिर इससे बहुत सारे एनिमल्स कैसे बने। और इतने सारे माइक्रोब हैं हमारी अर्थ के अंदर, समुद्र के अंदर एक छोटी सी इतने से मिट्टी के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं। तो इन सारी वैरायटीज क्यों जन्म ली, हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। हम कहेंगे बेसिकली बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और हम्म। बायोलॉजी, लॉजी का मतलब आपको पता है, लोगस का मतलब होता है स्टडी। और साइंस, सो हम्म। बायोलॉजी, बायोलॉजी नॉट बायोलॉजी, बायोलॉजी लिटरली बायोलॉजी। मीन्स स्टडी बायोलॉजी। ऑफ या साइंस ऑफ लाइफ, ओके। So those people who are expert in biology in that subject, what could be they? What is the sub sent word for them? बाय अच्छा, बायोग्राफी। Biologist. Pronounce it ओ again. सॉरी, बायो बायोलॉजिस्ट। Yes. बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट। Biologist. Biologist. बायोलॉजिस्ट। Yes, ma'am. बायोलॉजिस्ट। We talked of biography in the previous class. Writing about someone's life, autobiography, one's own life story. Now, one important word comes here is biopsy. So, biopsy is examination of living tissue. So, we examine, हम एग्जामिन करते हैं अगर किसी खास तौर पर किसी कैंसर पेशेंट को, तो उसकी जिस पार्ट पे कैंसर होता है वहां से हम कुछ टिश्यू काटते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, और उसका हम सेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो ठीक है या किसी फॉरेन पैथोजन ने उसको बेसिकली वो कर लिया, एक्वायर कर लिया, कोई और तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है।
हम्म। हमारे सेल के अंदर ना एकदम मिस्टीरियस वर्ल्ड होता है, एकदम भयंकर। जब आप सेल को बहुत डीप स्टडी करते हो तब आपको पता चलता है। तो वो जो वायरस होता है ना, वो डायरेक्टली बोन मेरो में इफेक्ट करता है, बोन मेरो से वो सीधा ब्रेन में घुसने की कोशिश करता है। इतना छोटा सा कि ऑर्गेनिज्म वो इतना भयंकर काम करता है। तो हम्म। कौन होगा उसका दिमाग वगैरह। फिर आता है अटॉप्सी। नॉट ऑटोप्सी, इट इज अटॉप्सी, ओके। अटॉप्सी। अटॉप्सी। तो इसका मतलब होता अटॉप्सी। है एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। स्पेशली शुरुआत में ये लोग क्या करते थे, प्लांट जो खत्म हो चुके हैं उनके बारे में स्टडी करते थे, क्योंकि प्लांट में भी बहुत प्रकार की डिसीज होती हैं, जैसे विल्ट होता है, वाट होता है। तो उनके बारे में स्टडी करते थे और पता लगाते थे कि इसमें बीमारी कौन सी होती है, ठीक है। हम्म। ओके, वेल डन। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो अब बारी आती है डियर करिश्मा की शाइन करने की। वैसे ये सेशन में बहुत कुछ है अभी। इसका प्रैक्टिस सेशन कल रखें या आज रखें? जब कराते हैं, कल रखें। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। केवल आप रूट वर्ड्स को रिकॉल करोगे। आपके सामने पीपीटी है, यहाँ से आप वर्ड पढ़ोगे और उनके रूट को रिकॉल कर लोगे, ठीक है। चलो। एंथ्रोपॉस। ओके, एंथ्रोपोलॉजी के बारे एंथ्रोपोफॉस। में बताना भूल गया था मैं शायद। तो एंथ्रोपोलॉजी होता है, एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु इज एक्सपर्ट इन दी स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ओके। लोगोस का हम्म। मतलब क्या होता है, यहाँ से आप रिकॉल करते जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे इसका मीनिंग लिखा हुआ है। चलो स्टार्ट, 1 मिनट के अंदर फिनिश कर देना। लोगोस। लोगोस का मतलब था। इसी के नीचे इसका मीनिंग भी लिखा हुआ, इफ यू आर स्ट्रगलिंग। अच्छा, लोगोस का मतलब साइंस स्टडी। ओ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। साइंस स्टडी। एस्ट्रोन, एस्ट्रोन का मतलब स्टार। न्यूटस का मतलब सेलर। नॉस का मतलब शिप। डिस का मतलब अगेंस्ट। नोमस का मतलब लॉ, ऑर्डर। ऑटोज मतलब सेल्फ। मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। जियो मतलब अर्थ। ग्राफियन मतलब टू राइट। बायोस मतलब लाइफ। ऑप्सिस। ऑप्सिस ऑप्टिक। ऑप्टिक्स व्यू साइट। बॉट बॉटीज बॉटीन बॉटीन का मतलब होता है प्लांट। एंड जॉइन, जॉइन का मतलब होता है जो जो भी है वो एनिमल। हाँ, तो हमने कल बॉटनिस्ट और जियोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। जो हाँ। जियोलॉजिस्ट की प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही गलत, लोग कहते हैं जियोलॉजिस्ट कहते हैं। जूलॉजिस्ट। इट इज दैट वाज जूलॉजिस्ट। लॉ। जूलॉजिस्ट, लॉ। जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जियोलॉजिस्ट लाइक जूलॉजिस्ट। दी जूलॉजिस्ट कोऑपरेशन को। इन द सेम वे। ये। जियोलॉजिस्ट, ओके। ओके। ओके, नाउ कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड? प्रोनाउंस द ओके, वेट अ वर्ड। मिनट। वैसे हमने प्रोनाउंसिएशन को आज शुरुआत के ही अंदर देख लिया है। यस और नो करते हैं, फिर मैच द कॉलम को हम कल करेंगे, ठीक है। ओके। So I'm going to ask question and you have to answer it yes and no. Are anthropological studies concerned with plant life? नो। Anthropological. नो। No. नो। Are astronomical numbers extremely small? स्ट्रॉन्ग, नो। वेरी लार्ज। Is it astrologer interested in the time and the date of your birth? यस। Are nautical maneuvers carried on at sea? यस। Does a biologist study non-living things? नो। Is a geologist concerned with the structure of Earth? यस। Does a botanist study animal life? बॉटनिस्ट, दैट इज नो। Is geologist the study of animals? यस। Does geography deals with mapping the Earth? यस। Is a biography of the story of person's life written by someone else? यस। ओके, तो इसी तरह से एक दो और क्वेश्चन है, मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं, काफी लंबी हो गई। ओके। थैंक यू दादा। कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच डियर करिश्मा। ओके। आई एम कॉलिंग यू इन व्हाट्सएप। ओके, कॉल।